first had a heart transplant, then my mother had a heart transplant, which is why we started Organ India. My mother survived for 5 years post her heart transplant, but then soon after that she passed away. And my mother passed away. So 5 years she was well post the transplant. And then many people said कि Organ India बंद कर दो. Why should we keep it open? आपका खुद का purpose तो चले गया है. तो we as a family said very very strongly that हम नहीं बंद करेंगे. My mother was just a catalyst. The cause is all of you, and that's why we continue with Organ India. It is not easy to run it. It is not easy to fund it. It is not easy to operate it, and the team is fantastic. They work very hard, lot of sweat, blood and tears to make it happen. And over the last so many years, especially when you think about the World Transplant Games, when they started in 2019, we first had a handful of athletes representing India, to 2025, when there were 57 athletes representing India, with the largest haul of 63 medals coming back for the country. It's fantastic. As the official team managers for Team India, Organ India is very, very privileged to be given that title. We try our best to work hard and to work transparently for each of you and for Team India. Obviously, none of that would be possible for us without Manavraksha University, Dr. Bhalla, Dr. Garba, Mr. Rajiv Kapoor, Mr. Agar Talwar, Dr. Sumit Arora and his team, and all the work and the hard work that they put into training all of you, these camps, to providing the facilities, to providing resources, to the hours that go into all of this. And consistently for many years, sir, all of you have been our partners in making this happen. In Belgium, that we can have the largest ever contingent of Indian athletes. And we can bring back the largest number of medals. For that, I want to thank my team for already working at it, for getting all the motivation going, for starting this first camp. But also for it, we need all of our help as athletes to stay fit, to stay healthy, to keep practicing, to work hard towards our collective goal, to help with fundraising, because it's not something we can do on our own, and to the media as well for helping us with all of these things. So I do hope that with each of this awareness spreads, we are able to talk about the cause more, to spread awareness more, and to build our collective dream together. Thank you so much for being here. इस भूमि में कैसे ऑर्गन इंडिया का जन्म हुआ, कैसे इनके परिवार के सदस्यों ने विभिन्न समय पर ऑर्गन ट्रांसप्लांट की आवश्यकता पड़ी और समाज में इस फैली समस्या को, उन परिवारों की तकलीफ को, जिनको ऑर्गन की आवश्यकता पड़ती है और कैसे उनकी खोज जारी होती है और डोनर्स को मोटिवेट किया जाता है प्रचार से। तो इस सारे इस नेक कार्य को करने के लिए इस परिवार ने एक पहल करी। इस कल्याणकारी कार्य में न केवल अपना काफी योगदान दिया और अब तक वो योगदान चालू है, परंतु अन्य इंडिविजुअल्स और संस्थाओं को इसमें कार्य में जोड़ा ताकि हमारा देश बहुत, हम लोग 1.5 मिलियन पॉपुलेशन का देश है। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने लोगों को, बहुत सारे तो नोटिस में नहीं आते और वो बेचारे उनको टाइम पे डोनर ना मिलने की वजह से अपना पूरा जीवन नहीं जी पाते। तो एक प्रचार की आवश्यकता है, डोनर्स को मोटिवेट करना, उनको ये ज्ञान देना कि कोई बहुत ज़्यादा उनके जब वो कोई ऑर्गन ऐसा जो दान दिया जा सकता है और उनकी बॉडी पे कोई बहुत ज़्यादा टैक्सिंग नहीं होता, तो दे शुड कम फॉरवर्ड और हमारे प्रांगण में आते हैं। प्रभु की कृपा है यहाँ
साधनों की कोई कमी नहीं, और जो डॉक्टरों की भला फाउंडेशन है, it is dedicated to the memory of our late founder Dr. O.P. Bhala, who was a very visionary person, a very kind, compassionate personality. I saw him for 4-5 years when I joined here as vice chancellor. वो हर नेक अच्छे हेल्थ चेकअप कैंप्स हों, फ्री मेडिसिन हो, इवन मेवात विलेजेस में डॉक्टर्स को ले जाना, कैंप को करना, और जो कोई इस प्रकार के हेल्थ से रिलेटेड कंपेन होते थे उनमें डोनेट करना, भाग लेना, वो न केवल खुद को करते थे, he would motivate all of us. So that spirit is still continuing in मानव रचना, and through Dr. O.P. Bhala Foundation हमको CSR activities के तहत हम भी keep on organizing health checkup camps, mammography camp, mammography screening camps, और sanitation, education, health, elderly care, child and women development, all these objectives are part and parcel of our regular campaigns. आपको एक तरह का ब्रदरहुड, कॉमरेडशिप एक डेवलप होती है, फिर देश के प्रति हम भी जाएं वहाँ, एक तो बाहर जाने का एक अनुभव होता है, एक दूसरा कि देश की प्रेस्टीज बढ़ाएं, जो पीछे मेडल टैली है तो वो ये सिद्ध करती है कि हम भारतीय किसी से कम नहीं। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो किडनी ट्रांसप्लांट वाले या ट्रांसप्लांट ऑर्गन ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट्स जो हैं वो एक अपने आप को ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं, उनमें नई स्फूर्ति आ रही है, और वो लोग हम लोग ये देख रहे हैं कि कोई हमें संभालने वाला है, हमें कोई आगे बढ़ाने वाला है और हमारी इच्छाओं को आगे बढ़ाने वाला है। ऑर्गन इंडिया लिमिटेड जो ऑर्गन इंडिया जो है ये हमें ऐसा सपोर्ट कर रहा है जिससे हमें हमारी जीने की इच्छा और पक्की हो रही है और बढ़ रही है। हम इसका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सर, आपको मानव रचना और पारासर फाउंडेशन से कितनी हेल्प मिली और इनके बारे में क्या कहना है? देखिए, फाइनेंशियल हेल्प पर्टिकुलर मैंने तो नहीं ली, लेकिन हाँ ये ऐसे लोगों की ज़रूर हेल्प करते हैं जिन्हें ज़रूरत होती है, जिनमें कोई न कोई ऐसी हॉबी होती है जिसे इंटरनेशनल लेवल पे निखारना ज़रूरी है, जिससे देश का नाम ऊंचा हो, जिससे हम फ़ख्र महसूस करें। ऐसे लोगों की ये दोनों ही फाउंडेशन जो हैं बहुत मदद करते हैं, और हम देख रहे हैं पिछले 2-3 साल से कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके अंदर और बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। किडनी डोनेट करने के बाद आपको कोई समस्या तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है फिजिकल? 1% कोई समस्या नहीं है, और हम और ज़्यादा ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं किडनी ट्रांसप्लांट के बाद। पहले हम डर के जी रहे थे, अब हम बहुत मस्ती से जी रहे हैं। मेरे जैसे उम्र के लड़के जिनका ट्रांसप्लांट हुआ तेज तो वो अभी घर में रहता है, मतलब डर के, लेकिन ये सब चल रहा है तो उस वजह से मुझे ऊर्जा मिली, और मैं अभी डरता नहीं। पहले मैं डरता था इन्फेक्शन होने का डर, बाकी सब दवाई वो सब, और बहुत अच्छा महसूस हो रहा है यहाँ पे आने के बाद। अभी कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है? अभी कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं बिल्कुल फिट हूँ। कितने दिन हो गए किडनी ट्रांसप्लांट किए? मेरे 15-16 महीने हुए हैं। जब मैं 15 साल का था तब मेरा किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था, 2024 8 नवंबर को। प्रेस हमेशा करता हूँ, बाहर की तली हुई चीज़ें ये सब मैं नहीं खाता। अभी क्या? ठीक है। मेरा नाम जसकरण सिंह है, मैं एक किडनी डोनर हूँ। 2022 में फेब में मैंने अपनी अपनी वाइफ को दिया था। वो पहले CKD की प्रॉब्लम से जूझ रहे थे। मानव रचना यूनिवर्सिटी में हम ऑर्गन इंडिया के थ्रू कैंप अटेंड करने आते हैं सेल्फ डेवलपमेंट में। लास्ट ईयर भी हमने ये कैंप अटेंड किया था। उसके बाद उनकी गाइडेंस के थ्रू हम आगे वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स में मैंने भाग लिया था। उसमें मेरे 4 गोल्ड मेडल्स आए थे और 1 सिल्वर, और बेस्ट डोनर एथलीट इन द वर्ल्ड, वो भी अवार्ड टाइटल मुझे मिला था वहाँ। अच्छा, शिवाजीत जी, आप बताएं कि आपको जो किडनी ट्रांसप्लांट की आपके हस्बैंड ने, तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किडनी से? नमस्कार, मेरा नाम मीनल चिश्तौर है, और मेरे हस्बैंड ने जैसे कि मेरे को किडनी डोनेट की है, और उसके बाद से मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि उसके बाद से मुझे ऐसा लगता है कि मैं ज़्यादा एक्टिव हूँ अपनी लाइफ में, और अपने आप को फिट रखने के लिए स्पोर्ट्स के माध्यम से और ज़्यादा एक्टिव हूँ। तो डेली एक्सरसाइज कर रही हैं आप? हाँ जी, मैं डेली एक्सरसाइज भी करती हूँ, और जो स्पोर्ट्स मुझे आगे खेलना भी है, और जैसे मैंने WTG 2025 में रेस वॉक में पार्टिसिपेट किया था, 3000 मीटर रेस वॉक में, तो उसकी भी प्रैक्टिस में साथ में करती हूँ। खाने पीने में कोई परहेज़ वगैरह कोई ऐसी चीज़ है? जी, जो भी हमें जिस
हिसाब से डॉक्टर ने डाइट का बताया है उस चीज़ को हम फॉलो करते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा मीठा, बहुत ज़्यादा नमक, ताकि हमारा कोई बीपी शुगर या ऐसे कोई प्रॉब्लम ना आए, और साफ़ सुथरा खाना कोशिश करते हैं घर का बना हुआ खाना खाएं, बाहर से कुछ ऐसा ना खाएं जिसकी वजह से कोई और। जसकरण जी, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आपको नहीं, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आफ्टर किडनी डोनिंग मतलब जैसे मेरी पहले लाइफ चल रही थी सेम एज इट इज़ वैसे चल रही है। थोड़ा ये जरूर हो जाता है कि हेल्थ को लेके ये नहीं है कि ओवर वेट होना है या कुछ है, ठीक है, अच्छा मसल मास बना रहे, ठीक है, उसकी चीज़ पे चलना, फैट के ऊपर ज़्यादा नहीं करना। एक्सरसाइज और एक्सरसाइज वगैरह वो रेगुलरली जैसे ही सेम एज ड्यूटी जैसे हम पहले करते थे वैसे ही कर रहे हैं। एक्सरसाइज वगैरह मैंने नॉर्मल, तो इसमें जैसे वेट चलने चलने में कोई दिक्कत जैसे वेट उठाने में कोई दिक्कत होती है? वेट कितना नहीं, वेट कोई उठा भी सकते वेट हैं? उठाने में दिक्कत नहीं है। ये सारा मिथ है कि वेट उठाने में कोई दिक्कत, या। जब तक आपके टांके लगे हैं तब तक आपको परहेज करना होता है, उसके बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऑर्गन में अगर ऑर्गन डोन किया है, नहीं, कईयों का एक ऑर्गन ही होता है, किडनी जैसे कईयों की एक होती है, उसको बाद में पता लगता है, जब वो टेस्ट करवाता है तब पता लगता है। तो उनकी लाइफ नॉर्मल चलती रहती है और इसमें कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए और ना फ़र्क पड़ता है। ये मानव रचना और पारासर फाउंडेशन ने आपकी कैसे हेल्प की? मानव रचना एंड प्राशर फाउंडेशन, जैसे प्राशर फाउंडेशन ने पिछली बार हमें पता लगा कि प्राशर फाउंडेशन के थ्रू उनका एक सिस्टर कंसर्न है जैसे ऑर्गन, वो अपने कंटेंजेंट लेके जाते हैं नेशनल ट्रांसप्लांट इंटरनेशनल वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स में। उनके थ्रू हमें पता लगा, उनके थ्रू फाइनेंशियली भी थोड़ा सपोर्ट मिला कि हम उन्होंने सपोर्ट किया कि आपको, और मोटिवेशन दिया, और मानव रचना के हमें कैंप में अटेंड करवाया। मानव रचना के जो उनके डॉक्टर्स हैं, फिजियोज़ हैं, उन्होंने हमें क्या कैसे एक्सरसाइजेस करनी है और कैसे कूल डाउन करना है, वार्म अप करना है। ये ऐसी चीज़ थी कि जो हमारी परफॉर्मेंस है उसको ऑलमोस्ट उसने बूस्ट पे ले आए, जो हम गुड थे उसको एक्सीलेंट वे पे ले आए। और ठीक। अब नेशनल वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स 2027 की तैयारी चल रही है, और नेक्स्ट ईयर बेल्जियम में ये ट्रांसप्लांट गेम्स हैं, उसके लिए हमने इस बार कैंप अटेंड किया है, जो कि हमारा 27 जून से लेके 4 जुलाई तक चल रहा है। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। भारत माता की जय! भारत माता की जय! मेरा नाम अनिता पराशर है। पराशर फाउंडेशन हमारी फैमिली फाउंडेशन है। इसका एक इनिशिएटिव है ऑर्गन इंडिया। ये हमने 13 साल पहले मैंने शुरू किया था, क्योंकि मेरी मदर का हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था। उससे पहले मेरी मासी जी का हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था। तो हमारी फैमिली में ये 2 बार ही हुआ है, जो हमें फिर सब पता चला है कि कितना मुश्किल होता है, ऑर्गन भी मिलना कितना मुश्किल होता है, अवेयरनेस कितना कम था। तो इसलिए मैंने ऑर्गन इंडिया शुरू किया, एंड अब 13 साल से हम इसमें काम कर रहे हैं, अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं। हम लोग कैंप्स में जाते हैं, स्कूल्स में, कॉर्पोरेट्स में, पंचायत में, रेडियो प्रोग्राम्स करते हैं, टीवी प्रोग्राम्स करते हैं। हम जितना भी कर सकते हैं करते हैं टू स्प्रेड अवेयरनेस फॉर ऑर्गन डोनेशन एंड ट्रांसप्लांट, ताकि जितने भी लोग हम लोग बढ़ा के ऑर्गन प्लेजेस बढ़ा सकते हैं, ताकि फिर वो गैप जो है बिटवीन जिनको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत हो एंड जितने ऑर्गन्स अवेलेबल हो, वो गैप को हम कम करना चाहते हैं। तो अभी भी भारत में ये कमी है, ये गैप बहुत बड़ा है, हम इसको कम करना चाहते हैं। तो वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये 2011 से चल रहे हैं, मतलब 40 ईयर्स से चल रहे हैं, बट 2011 से इंडिया का थोड़ा सा इक्का दुक्का प्रेजेंस था, हैंडफुल ऑफ एथलीट्स जा रहे थे। 2023 में हमने एक लार्जर प्रेजेंस के साथ ऑर्गन इंडिया ऑफिशियल टीम मैनेजर्स बने थे फॉर द वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स फ्रॉम इंडिया। तो हम एथलीट्स को ले गए थे पहले ऑस्ट्रेलिया, उस साल में 35 एथलीट्स गए थे और 32 मेडल्स हमने जीता था भारत के लिए। 2025 में हम गए जर्मनी, वहाँ पे हम 57 एथलीट्स को ले गए थे एंड 63 मेडल्स जीत के आए भारत के लिए। किडनी ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट्स, डोनर्स, लिवर, हार्ट, बच्चे भी थे, लेडीज़ भी थे, मैन भी थे, सब किस्म के लोग, एजेस, जेंडर, सब। एंड अब 2027 में हमारे नेक्स्ट गेम्स हैं जो बेल्जियम में हो रहे हैं, एंड हमारी ये इच्छा है कि हम उससे भी बढ़ के एक कंटिंजेंट ले जाए भारत के लिए और भी मेडल्स लेके आएँ। तो कितने प्लेयर मैडम ये तैयारी करी है इस बार की? अभी कैंप में तो 40 प्लेयर्स हैं, बट ये बढ़ते जाएंगे, बिकॉज अभी भी 1 साल है और भी कैंप्स होंगे।
हमारे कैंप्स में बहुत सपोर्ट किए हैं मानव रचना यूनिवर्सिटी में, ओपी भल्ला फाउंडेशन में। वो लोग यहाँ पे कैंप्स कराते हैं, अपना कैंपस देते हैं, अपने टीचर्स देते हैं, अपने रिसोर्सेज देते हैं। तो कोई छोटी बात नहीं है। ट्रांसप्लांट एथलीट्स भारत के हर कोने से आते हैं प्रेपरेशन करने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए फॉर द कैंप्स। मैम, जिस तरह आप ये तैयारी करवा रहे हैं, जी, तो इसका बजट का जो सपोर्ट रहा है, किस तरह में सपोर्ट होगा इसमें हम बजट लोग में? एक तो हमारे खुद के फाउंडेशन से जितना भी दे सकते हैं हम देते जी। हैं। सुब्रोस हैं जो हमारा बहुत सपोर्ट करते हैं। सुब्रोस जो कंपनी है, लास्ट टाइम भी कैंप वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स के लिए इन्होंने बहुत सपोर्ट दिया, एंड इस टाइम भी बहुत सपोर्ट दे रहे हैं। और भी ट्रस्ट हैं, कॉर्पोरेट्स हैं जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया, बट हम चाहते हैं कि और भी हों। CSR फंड का भी जी, CSR फंड्स भी मिलते हैं, बट और की ज़रूरत है सर। मैम, कोई इसमें जैसे- ऐसा कोई प्लेयर है कोई जिसमें जो बिल्कुल गरीब परिवार से हो, बहुत उसको सारे। सपोर्ट? सर बहुत सारे, अगर आप बात करेंगे उनसे, रियली बहुत सारे हैं। हम जितना भी सपोर्ट कर सकते हैं, हम एक प्राइवेट NGO हैं, जितना भी सपोर्ट कर सकते हैं हम करते हैं। जितने भी जनरस CSR कंपनीज देते हैं, अभी तक काफ़ी लोग ने सपोर्ट किया है, वो भी। बट अगर हम टीम को बढ़ाना चाहते हैं, ओके, एंड और भी अपॉर्चुनिटीज़ देना चाहते हैं, जो गरीब घर से प्लेयर्स हैं, गांव से हैं, ऑल काइंड्स ऑफ कोने कोने से बहुत फैंटास्टिक एथलीट्स हैं, बट कैसे ले जाएं हम सबको? तो यही हम चाहते हैं, आपसे भी सपोर्ट, मीडिया से सपोर्ट, कॉर्पोरेट से सपोर्ट, कि आइए, जैसे पैरालंपिक्स को सपोर्ट दिया है ओवर सो मेनी ईयर्स, कि अब हम ट्रांसप्लांट गेम्स को भी सपोर्ट दें, एंड जितने भी लोग फिर जितने भी एथलीट्स को हम और बढ़ के सपोर्ट दे सकें, हम करें। आप 27 जुलाई से 4 जुलाई 27 जून से 4 जुलाई तक का आप जो प्रोग्राम चला रहे हैं, जी सर। ट्रेनिंग कैंप चला रहे हैं, वो यहाँ तो आपने 1 हफ्ते का कर दिया। अब आगे कितने और कैंप लगने वाले हैं और कितने स्टेट में लगने वाले हैं? हम चाहते हैं कि हम और 3 तो करें बिटवीन नाउ एंड ट्रांसप्लांट गेम जो होंगे अगले साल। बट सर, ये फंड्स पे भी डिपेंड करता है, एंड जो एथलीट्स आ सकते हैं वो भी डिपेंड करता है कि हम कहाँ, जैसे अगर ज़्यादातर राजस्थान में बहुत प्लेयर्स हैं हमारे, अगर वो उनके लिए दिल्ली सूट करता है। बट अगर हम साउथ में, जैसे बेंगलोर, मुंबई, वेस्ट साउथ में अगर करना चाहें, उसके लिए भी फंड्स की ज़रूरत होती है सर। यहाँ पे तो मानव रचना बहुत सपोर्ट करती है। नहीं मैम, जिस तरह आप तैयारी कर रहे हैं जी। क्या आपको गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट से कोई सपोर्ट मिलता है अभी क्या? नहीं सर, अभी नहीं। अभी आपने मांगा नहीं है या गवर्नमेंट हम देती हम नहीं है? हम कोशिश तो करते हैं, एंड हम कोशिश करेंगे कि और भी सपोर्ट मिले। अब जैसे हम आगे बढ़े, जैसे मैंने देखा है कि पैरालंपिक्स में बहुत फ़र्क पड़ा है। अब पैरालंपिक्स को भी गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट करेगी। बिल्कुल। तो होपफुली अब ये ट्रांसप्लांट गेम्स की भी स्टोरी होगी। जितना भी आप लोग भी बात करें, सपोर्ट करें हमें ये बात फैलाने में, तो फिर हमें वो सपोर्ट भी मिलना शुरू हो जाएगा। ओके, ठीक है, थैंक थैंक यू सो मच। वहम है, कुछ डर है, तो उसको दूर करने के लिए ये साथी एक गेम, ट्रांसप्लांट गेम्स प्रतिवर्ष इंटरनेशनल लेवल पे होती है। जैसे पिछले साल जर्मनी में हुई थी, इस बार 2027 में बेल्जियम में हो रही है। तो ये यहाँ से प्लेयर्स, जो डोनर्स हैं वो भी, और रिसिपिएंट्स वो भी भेजे जाते हैं। और जैसे ओलंपिक गेम्स होती हैं या दूसरी गेम्स होती हैं, बाकायदा वही मेडल्स, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड मेडल भिन्न गेम्स में। तो ये करीब 51 देशों से प्लेयर्स इस प्रकार के गेम्स में हिस्सा लेते हैं। हमारे यहाँ से भी अच्छा भला कंटिजेंट जाता है और काफ़ी संख्या में मेडल्स लाते हैं। तो ये साथी ताकि टाइम पे अपना फिटनेस लेवल ठीक रखें, इनकी टेक्निक्स को इम्प्रूव करने के लिए, इनकी बॉडी की कंडीशनिंग के लिए, तो ऑर्गन इंडिया के सौजन्य से, क्योंकि ऑर्गन इंडिया प्राचर फाउंडेशन के अम्ब्रेला में ये काम कर रहा है, और मानव रचना कैंपस में डॉक्टर ओपी भल्ला फाउंडेशन को ये साथ जोड़ते हैं प्रतिवर्ष। और ये ट्रेनिंग कम असेसमेंट कैंप मानव रचना कैंपस में इस साल भी किया जा रहा है, ताकि इनको कोचिंग से ट्रेनिंग दी जाए, इनकी बॉडी को कैसे सशक्त किया जाए, और ये अपने आप को अगले साल मेडल लेने के लिए तैयार रखें। भारत में जितने प्लेयर्स अभी तक आप लोगों ने तैयार किए हैं, और जो ट्रांसप्लांट वाले जितने भी प्लेयर्स हैं, वैसे तो फ्यू थाउजेंड्स में
इस प्रकार के डोनर्स और रिसिपिएंट्स हैं थ्रू आउट द कंट्री। जो ऑर्गन इंडिया या हमारे साथ जुड़ते हैं, करीब 100+ प्लेयर्स प्रति वर्ष हमारे साथ जुड़ते हैं और लगभग इतने ही प्लेयर 100, 150, 125 ये इस प्रकार के गेम्स में भागीदारी करने जाते हैं और करीब 6-7 दर्जन ये मेडल्स लाते हैं। अभी एक कपल है, मिस्टर सिंह पंजाब से हैं और उनकी मैडम, वो खुद डोनर थे, उनकी मैडम रिसिपिएंट थी। पिछले बार ही वाज डिक्लेयर्ड बेस्ट एथलीट, उनके 4 गोल्ड मेडल और 1 ब्रॉन्ज मेडल था। मतलब ये एक प्राइड की बात है हमारे लिए कि वहाँ बेस्ट एथलीट हमारा ही वो मौजूद हैं। उनको भी आप इन्फो करिएगा, उनकी मैडम भी, उन्होंने अपनी एक किडनी अपनी वाइफ को डोनेट की।